Thank you very much. At the outset, let me congratulate the organizers for choosing this topic, because in the present scenario, in the COVID-19, this topic is very much relevant, because people have lost their jobs, people have lost their nearest and dearest, and the mental conditions of the people are in the state of anxiety, in the depression and other things. And as we know that psychology is defined as the study of our mental processes and behaviors associated with it. So I think that it is a more relevant subject which is chosen by the organizers. So for that, I would like to congratulate them. Let me share my PPT. Host disabled participant screen sharing. Please allow me. Please enable me to share my screen. Yes. Thank you very much. So you know, keeping the psychophysiological problems of mankind, the potentialities of yoga have been actualized in the light of scientific studies all over the world. Sage Patanjali, whose work in the field of human psychology is well recognized in the West, provides systematic approach not only to understand the root causes of psychophysiological problems of mankind, but also provides a scientific techniques, practices to overcome such conditions. Modern psychology, an offshoot of Western philosophy, is scientific, however, has its limited scope and premise of understanding human behavior through empirical approach, and its ultimate goal is nothing but the social adjustment. Modern psychology is divided into several sub-disciplines, each based on the differing models of behavior and mental processes. Actually speaking, this presentation, this is what is related to the modern psychology. It is not related to us. I'm just coming to the human psychology, and because the topic is related to the Indian psychology, and this all schools of psychology that are included in human psychology, so Indian psychology is also included in it. So I'm coming to my topic, that is yoga psychology, and I'm going to talk in the light of Patanjali. Everyone knows that yoga is one of the 6 systems of Indian orthodox philosophies of the darshanas, has particular concern with psychology, often called as Indian psychology. भारतीय मनोविज्ञान ही माना जाता है ये पतंजलि योग सूत्र को, क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो चित्त से ही रिलेटेड है, और ये चित्त को ही रिफाइन करना ताकि वो शुद्ध चेतन जो है उसका रियलाइज हो सके, वही है। और एज ए फील्ड ऑफ सेल्फ, उस स्वरूपावस्था की बात जब करते हैं हम लोग, तो उस ओरिजिनल नेचर की बात करते हैं, उस संदर्भ में अगर बात करें तो ये सेल्फ की जो स्टडी योग जो है वो ट्रांसेंड कर देता है किसको, बोथ जनरल एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी को, एंड इट लीड्स अस टुवर्ड्स द सुपर नॉर्मल लेवल ऑफ लाइफ। जो कोई भी इसमें ये लिख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये ना करें, क्योंकि ये शोभा नहीं देता है। और ये हमारा भारतीय जो 6 दर्शन हैं उनमें से योग जो है एक है, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी में से योग जो है वो एक है। अब डायरेक्टली coming to the point, Patanjali, because it is a psychological exposition of yoga, here
you can see that this is divided into 4 chapters. Everyone knows this is not a new thing. The central theme is Chit Vritti Nirodha, which is misinterpreted by people. That is what is to be made clear today. So if we understand this central theme, then only we can get established in our own Sarupa. Otherwise, if we don't understand it properly, we'll get carried away along with the thoughts and we will be lost, and there is nothing except the endless pain and misery. So with a view to overcome all this, we have to understand this our psyche properly. Then only we will be able to overcome this all suffering and other things, whatever is. So just giving the idea, the most important, which is not accepted yet by the modern psychology, here you have to pay attention. Once again, I request the person who is writing on my this should not do this. It does not look nice. Please do not do, if you think that it is a good, but don't do good things if they they do not do not do good things if they look bad. Please don't do this. Now let us understand. Let me share this. So this is the pure consciousness, which we call the Purusha. Here you have to pay a little attention. Modern psychology, this concept is not yet clear in there. They have accepted this only phenomenal or the intentional. So, and our this, if this is a chit, it is all pervading. It is without any attributes. Here you can see the chit, which is said to be the product of Prakriti. It is a jad, inert, because the nature, Prakriti, is said to be unconscious. This unconscious Prakriti gets activated when this reflection of this Purusha, the pure consciousness, falls on this. This is called. So this Purusha is a catalyst. All activities are happening in this Prakriti. That is what is the Chitta. How it happens? Just you see. The reflection falls on our this Chitta, and Chit gets enlightened. Therefore, this is the most important, which is to be understood properly. Once again, you see, if this conscious phenomena goes out, then this Chit again is a jad. अभी जो आप देख रहे हैं, जो मूवमेंट हो रही है, जो भी सेंसेशन हो रही है, my lips are whispering, it is only because that catalyst is present. Now coming to the point, this Chitta is, you can see the black, red and the white color. So the black is representing the, what you call the Tamoguna, and red is representing the Rajas Guna, and Sattva is representing the this white is representing the Sattva Guna. So this, what is this Prakriti? Let us understand. What is this Prakriti? This Prakriti is a acupoise state of this threefold energy. Okay. So when this catalyst Purusha, pure consciousness, comes in front, take one example, it will be easy for you to understand. The mirror. Mirror cannot reflect unless there is a light. So there is a light, but the mirror is also present, light is also present, but the surface of the mirror is polluted with the dust particle. Will it reflect your image as it is? No, it will reflect your image in a distorted form. Therefore, we have to understand that first and foremost is that this mirror is to be, the surface of the mirror is to be cleaned properly. Then only this light can, light comes on the mirror, and whatever is come in front of the mirror, it will be reflected properly. So this is what we have to understand. And this Chitta, people have understood only 2-3 things. Here you have to dive a little deep.
So Chit representing your causal body also, because all whatever the deeds you have done in the past, all experiences are imprinted on this Chitta. So this is called the causal body, the unconscious part, what we used to call it karmashaya. This is a karmashaya. All experiences are collected in this, what you call the storehouse, and everything is present. Whatever we have experienced in the past, all impressions are stored up here in the causal body. Now let us come to the subtle body. So subtle body contains your intellect, your individuating principle, what we call the ahankara, then the manas, and this, according to Sankhya Yoga philosophy, these three components are said to be the antakarana. And you see, the mind is said to be the king of senses. So mind is connected with the inner organs as well as the outer organs. This is to be understood. Now, this is what is the what you call the these are the sensory modalities. And here is the gross body, which is made up of 5 elements. On the basis of this, you can understand the whole 25 elements of Sankhya philosophy as well as the yoga philosophy. Yoga. So this is what the purpose is, to understand the structure of our this psyche and as well as the functioning of this psyche. Now, how this functions, that is what we have to understand. Now, this is the structure. This structure is to be clear first. Now, as I was talking, that everything, whether it is intellect, it is Rajasic, Tamasic, and Sattvic. If it is Ahankar, Rajasic, Tamasic, because this particular yoga psychology accepts what is that? The Parinambad. Parinambad means in Satkaryabad. Means Satkaryabad, this is a what you call the base, as in comparison to Vedanta. In Vedanta there is a Vivartabad. What is this Satkaryabad and Vivartabad? Because unless you understand this psyche, you should understand the basic principle. Parinambad is to be understood properly, then only it will be understandable. So what is this Parinambad? Is this Satkaryabad? The effect always remain in its cause in a subtle form. Now, let us take one example. The curd always remain in its cause, that is milk. So milk, when the milk contains the curd, it needs the processing, and this milk converts into curd. Okay, transforms totally. According to Sankhya Yoga philosophy, this is the Satkaryabad, this is the Parinambad. It converts the cause, transforms into means what you call the effect as it is. Now in Vivartabad, it is a delusion. Say for example, the difference is the what you call this rope. When you see the rope, you mistake that rope as a snake, but this rope does not transforms into snake. It is only because of the delusion. Once again, I request those who are writing on this PPT, I request them, please don't do this. It does not look nice. Thank you very much. So friends, here your prakriti is inert. So whatever comes out, it is Sattvic, Rajasic, and Tamasic. So whatever the elements you see, all are Sattvic, Rajasic, and Tamasic. Now let us understand that how this whole what you call the instruments, they work. So first of all, let us understand this manas, your sensory organs, they cannot work without the help of sensory, without the help of manas, the mind. Don't mistake this mind with the Western psychological mind, because that mind is all inclusive. This mind has a specific job to perform. So with the help of this mind, unless your mind is connected to your eyes, you will not be able to see any object. Unless this mind is connected to your what you call ear, you cannot hear the sound. Likewise, the skin, the touch, eyes, the form.
the tongue, the taste likewise. So now the mind, through these sensory organs, it goes to the object. It goes to the object. My dear friend, the one who is writing on my this, I will not be able to explain it properly. It does not look nice, my dear. Please don't do this. Please, please, please. So friends, mind through the sensory organs, it goes to the object, and then whatever the object it has, the form of that object or the sound or the touch it has assumes, that information it puts before the ahankar. Now this ahankar, because it is the individuating principle, it correlates. Then it goes to the karmashay, where all subliminal impressions are stored up, and it correlates whether it belongs to me or it does not belong to me. And thereafter, whatever the correlation established by this ahankar, then that information goes to the intellect. And intellect is said to be the deciding factor. Nishchayatmaka antakarana sthiti buddhi. So then this buddhi decides, and accordingly, when this buddhi decides, then it order the karmendriyas, and then the action takes place. So this is how we have to understand. It is all in a fraction of a second, but this is the process. It is to be understood. So once again repeating, सबसे पहले मन जो है वो इंद्रियों के माध्यम से वो विषय तक जाता है. अगर वो मन कान से जुड़ा तो शब्द सुनेगा, स्किन से जुड़ा तो टच को महसूस करेगा, लाइकवाइज. तो इंद्रियों के माध्यम से ये बाहर जाता है, विषय तक जाता है. देखिए यही हमारी साइकोलॉजी का और वेस्टर्न साइकोलॉजी में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? उनके ऑब्जेक्ट जो है उनके माइंड के पास आता है, हमारा मन जो है वो विषय के पास जाता है. यही डिफरेंस है दोनों में, फंडामेंटल डिफरेंस. तो देखिए, तो ये विषय के आकार प्रकार को मन ने धारण किया, और वो विषय जो है वो अहंकार के पास उसने प्रेजेंट कर दिया. अहंकार का काम है कोरिलेट करना. वो कोरिलेट कब करेगा? यहाँ कर्माशय में जाएगा. इसके पहले कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कुछ तो मेरे इसमें परिचित लोग हैं जो मुझे जानते हैं, परंतु वो जानते हैं जैसे ही उन्होंने मेरी शक्ल देखी और जैसे ही उनका मन उनकी आंखों के साथ जुड़ा और जैसे ही उन्होंने मुझे यहाँ बैठे हुए देखा, उन्होंने इमीडिएटली कह दिया कि ये शर्मा जी हैं. लेकिन जो नए लोग हैं जो मुझे नहीं जानते थे, वो आज उनके इस कर्माशय में वो इंप्रेशन स्टोर हो गया. अब जब कभी भी मैं उनको कहीं भी मिलूंगा, एयरपोर्ट पे या कहीं रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी, तो वो मुझे पहचान लेंगे कि ये वो आदमी है. ये अहंकार का काम है, वो कोरिलेट किया उसने. ये ऐसे ही यही कारण है कि हमारा परसेप्शन जो है वो हैम्पर होता है, क्योंकि इसके कारण ही हम लोग ऑब्जेक्ट को एज इट इज नहीं देख पाते हैं. यहाँ पर ये बात समझने की है. और जो कुछ भी अहंकार कोरिलेट करता है वो बुद्धि के पास जाता है, क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मक का अंतःकरण स्थिति है, वो निश्चय करने वाली शक्ति है, और फिर वो कर्म इंद्रियों को ऑर्डर देती है और इस प्रकार कर्म इंद्रियां काम करती हैं. वो मूवमेंट आप में आ जाता है. ये जो है इसको जानना बहुत ही अत्यावश्यक है. यदि हमें आगे चल करके इस हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शंस को और साइकोलॉजिकल अपने व्यवहार को अगर हमें परिवर्तित करना है, यदि ढालना है अगर हम उस सांचे में, तो ये जानना बहुत जरूरी था. इसके लिए मैंने ये आपके सामने रखा. अब दूसरी बात है, इसी बात को मॉडर्न साइकोलॉजी में माइंड हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड. माइंड इज ऑफन कंसीडर्ड एज सॉफ्टवेयर and the brain is considered to be the hardware. उनके पास अभी तक ये consciousness is often considered another term of the mind and its functions, nothing else. तो इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा विषय नहीं है, हम अपने विषय पे आ जाते हैं. अब आपने ये देखा, ये चित्त जो है एक ग्राउंड है. ये आपकी जो होल साइकी है ये एक ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में बहुत सारी प्ले चल रही, गेम चल रही है. कभी वो सत्वगुण की गेम है, कभी रजोगुण की गेम है, और कभी तमोगुण की गेम है. देखिए, इस बात को अगर हम लोग अच्छी तरह जान लेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल. पर्पस क्या है इस साइकी को समझने का और इसको दूसरी दिशा में ले जाने का? पर्पस क्या है? आज हम जो कुछ भी हैं, जो व्यवहार हमारा चल रहा है, ये कंडीशनड जो कुछ भी हमारे हैं,
इसको डीकंडीशन करने के लिए हमें क्या करना है, ये बाद की बात है। पहले जो कंडीशन हुए पड़े हैं, पहले इसको समझ लेना अच्छा है। तो दिस इज ए ग्राउंड वेयर ऑल काइंड्स ऑफ प्ले इज गोइंग ऑन। व्हेन तमोगुण प्लेस, you become dull, you feel sleepy, as black clouds they covers the sun and there is a darkness. That is what, when this play is going on, you can feel. You are sitting in this webinar at this moment, you are listening, but if you are feeling sleepy, it means that tamoguna is dominating your consciousness at this moment. If you are too active, the person who is writing on this, he is active, so his rajoguna is dominant at this moment, who is writing on this. Even after requesting, प्रार्थना भी किया वो व्यक्ति के सामने, फिर भी वो लिखने से चूक नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बहुत एक्टिव है वो, और रजोगुण प्रधान है उनका। और तीसरा है सत्वगुण, जहां पर आपको एक एकाग्रता जैसा होता है, फोकस रहता है। ये देखिए, तो ये तीनों प्रकार के, इन्हीं तीनों के कारण ये डिफरेंट प्रकार की गतिविधियां हमारे अंदर चलती रहती हैं, उसे हमें जानना आवश्यक है। देखिए, जब तमोगुण प्रधान होता है तो हमारी स्थिति जो है, तमोगुण कब प्रधान होता है? जब हमने वो मोह के कारण, अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने से मना कर रहा है और खुद कह रहा है कि आप जो कह रहे हो कृष्णा वो ठीक है, परंतु मेरा मन नहीं सुन रहा है। क्या कह रहा है? कार्पण्य दोषोपित स्वभावा पृच्छामि त्वामं समूढ़ चेता, मूढ़ चेता। अब मेरा चित्त जो है वो टोटली तमोगुण से ग्रस्त है, कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं मैं। ऐसी स्थिति जो है उसको ही हम लोग मूड स्टेट कहते हैं। ये स्टेट जो है, अभी इस स्टेट से उभारने के लिए कृष्ण जी ने बहुत काउंसलिंग किया, उसको उस मेंटल स्टेट से निकालने के लिए बहुत कोशिश किया, समय दिया, और इमीडिएटली सेकंड पाद में, इसलिए पहला चैप्टर जो है वो विषाद योग है और सेकंड चैप्टर इमीडिएटली सांख्य योग है, यानी ज्ञान दिया। उसके बाद वो ज्ञान से ही वो दूर हो सकता है। ज्ञान क्या है? वो ज्ञान सत्वगुण का उद्रेक को बढ़ाना। अब आप देखिए, ये स्थिति जो है वो योग के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि ये गेम चल रहा है तो यू आर नॉट इन ए स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग और अडेप्टिंग एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड। दूसरा है रजोगुण, जहां क्षिप्त स्टेट है, डिस्ट्रैक्टेड स्टेट है, कि आप टोटली एक्टिव हैं, जैसे मैड व्यक्ति के थॉट में सीक्वेंस नहीं होता, उसी तरह से ये स्थिति है। ये भी स्थिति बहुत ही, ये भी योग के काबिल नहीं है। इसको भी थोड़ा नॉर्मल ला करके तभी योग किया जा सकता है, सहायता दूसरे साइंसेस की सहायता लेके नॉर्मल करके तभी वो योग में। तो ये दो प्ले जो हैं, ये जो प्ले चल रहे हैं, ये प्ले जो हैं वो हमारे लिए कहीं भी उचित नहीं है। ये पूर्व जन्म के कारण या पूरे संस्कारों के कारण ये प्ले चलता रहता है। ऐसा प्ले चल रहा हो तो आप समझना कि अभी तक हम लोग योग्य नहीं है। अब आइए, एक थर्ड स्टेज जो है वो विक्षिप्त स्टेज है, जिसमें रजोगुण थोड़ी देर के लिए प्रधान होता है और उसके बाद सत्वगुण भी प्रधान होता है। सत्वगुण चल रहा है, से आप एग्जांपल लीजिए, इजीली समझ में आएगा। आप घूम रहे हैं और घूमने के साथ साथ अपने स्टेप्स के साथ आप मंत्र जाप कर रहे हैं। मंत्र जाप करते करते आप, मंत्र जाप जब तक कंटिन्यूसली चल रहा है तो सत्वगुण की प्रधानता है, सत्वगुण का प्ले चल रहा है। और जैसे ही मंत्र जाप करना भूल जाते हैं, कुछ दूसरा थॉट आ जाता है, कुछ समय तक उस थॉट के साथ आप रहते हैं, लेकिन फिर से आपको रिमाइंड किया जाता है, यू आर अगेन रिमाइंडेड, ओ आई वाज रिसाइटिंग मंत्र, आई शुड रिसाइट मंत्र। सो ये दोनों का प्ले, सत्व का और रज का, दोनों का प्ले चलता रहता है। पर्पस क्या है? इस रज के प्ले को कम करना और सत्व को बढ़ाना, ताकि एकाग्रता, वन पॉइंटेडनेस, तो सत्व जो है वो वन पॉइंटेडनेस आपका हो सके। यही वो वन पॉइंटेडनेस, यही वो एकाग्रता आपको क्या क्या करती है? एकाग्रता आपको कहां तक ले जाती है? सौमनस्यता देती है, सौमनस्यता, एकाग्रता, और फिर आत्मदर्शन योग्यता। ये एकाग्रता, फोकस, यही योग का उद्देश्य है, इस सत्व को बढ़ाना। क्योंकि सत्व वृद्धि कार्य सिद्धि, ऐसा कहा, सत्व वृद्धि, सत्व की वृद्धि होगी तो कार्य सिद्ध हो। तो इस गेम को आपने आगे बढ़ाना है, एकाग्रता को बढ़ाना, यानी सत्व को बढ़ाना। और ये सत्व की इतना लेवल तक अगर बढ़ जाता है तो आपने यूं समझना चाहिए कि निश्चित रूप से ये आप इन गुणों के क्लचेस से भी बाहर हो जाएंगे आप, निश्चित रूप से। तो ये है वो 5 भूमियां, जिस भूमियों के बारे में
व्यास जी ने अपने योग सूत्र में। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसे अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। इसके आगे चलते हैं। ये जितने भी ह्यूमन फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे जो मोड ऑफ बिहेवियर है हमारा, ये सारे इनन्यूमरेबल है, अनगिनत है। उस सारे के सारे बिहेवियर को महर्षि पतंजलि डेप्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, तो जितनी भी मोड ऑफ फंक्शनिंग है इसको उन्होंने 5 भागों में विभाजित कर दिया। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 ही है। प्रमाण क्या है? ये हम लोग प्रत्यक्ष कुछ देखते हैं, हम लोग कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो ग्रंथों में बताया है उसको हम लोग मान करके चलते हैं, ये प्रमाण। एपिस्टेमोलॉजी जो है, राइट नॉलेज, हमको राइट नॉलेज, परंतु ये नॉलेज जो है, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर ये राइट नॉलेज देने वाला, तो पतंजलि ने उसको वृत्ति के रूप में क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा कि वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, क्लिष्ट भी है अक्लिष्ट भी, यही आपको रॉन्ग दिशा में भी ले जा सकते हैं, यही आपको सही दिशा में भी ले जा सकते हैं। इसके लिए इसका वर्णन तो जरा थोड़ा सा गहराई से, क्योंकि हम आगे आएंगे उस विषय, पहले ये समझ लें कि इसका मोड ऑफ बिहेवियर कैसा कैसा। तो प्रमाण है, यदि राइट नॉलेज जो आपने अपनी आंखों से, जब तक जो प्रमाण, प्रमा यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा जाता है, और करण जो है, मान बोले तो प्रमा करणम, करणम माने इंस्ट्रूमेंट। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप यथार्थ अनुभव करते हैं, वस्तु को देखते हैं, वही प्रमाण है। यथार्थ अनुभव जिस करण इंस्ट्रूमेंट से आप ये करते हैं, उसी को कहा। विपर्य क्या है, ये पता होना चाहिए, जैसे पतंजलि ने डिफाइन किया। अब क्या कहा कि विपर्य रॉन्ग नॉलेज है, अतद्रूप प्रतिष्ठम, विपर्यो रॉन्ग, विपर्यो तद्रूप नहीं, जैसा क्या वैसा वस्तु को नहीं देखते। अब ये मैंने कहा कि जब तक वो कंडीशनड है, हम अब आपने लिंक बनाना है, जो हमने पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, लिंक बनाना है। हम लोग कंडीशनड हैं, अभी जो कुछ भी देखते हैं वो कंडीशनड होके देखते हैं। आज जो भी इमेज आपके अंदर बन गई, उसको परमानेंट चलती है। आदमी बदल भी जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, लेकिन आप उसको एज इट इज जानते हैं। तो यही कारण है कि तद्रूप नहीं, अतद्रूप देखते हैं। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, ये रॉन्ग नॉलेज है। अतद्रूप प्रतिष्ठम, मैंने आपने उसको सही ढंग से, यू आर अनेबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, इसलिए आप रस्सी को सांप समझते हैं। या आज आपने आपको, आप ये नाम, ये बी.आर. शर्मा नाम है, और ये रूप है, और ये वट एवर द फिनोमेना एसोसिएटेड विद दिस नेम एंड फॉर्म, ये उसी में मैं जीता हूं। ये मेरा मिथ्या ज्ञान है, ये रॉन्ग नॉलेज है, ये अतद्रूप है, तद्रूप नहीं है। मेरा रूप जो है, या मेरा जो ये जो नाम है, ये नहीं है, ये शरीर का नाम है, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम अनाम है, मैं दूसरे शब्दों में कहूं। अब विकल्प पे आता हूं, मैंने इशारा कर दिया। विकल्प है शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द को पकड़ करके आगे चले जाते हैं, जनी एज वी आर, वो कल्पना में, इमेजिनेशन में चले जाते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं। ये एक फंक्शन है हमारे माइंड का, और ये कल्पना अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। अगर आपने इसी तरह कल्पना अच्छी किया, यदि जीजाबाई जो शिवाजी की माता जी थी, अगर वो वीरता वाली बातें नहीं बताती तो शिवाजी इतने वीर नहीं बनते। इसलिए आप जान सकते हैं कि दोनों बातें हैं। तो कल्पना करनी है तो बहुत ऊंची कल्पना करनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि आपने भगवान के मंदिर जा रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं, ये भी कल्पना है। और दूसरी कल्पना कीजिए कि जिनीवा जाना है, हमको ये करना है, हनीमून मनाना है, ये भी कल्पना हो सकती है। तो ऐसा जानना है शब्द के पीछे। निद्रा, यहाँ पर डीप स्लीप की बात है। आप देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा गहराई से जानना है कि हम इस समय जागृत अवस्था में हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। अब आप देखिए, ये जागृत अवस्था है। अगर इस समय आपने कुछ जाना, आपको कुछ अच्छा लगा, वो अपील कर गया, वो संस्कार आपके ऊपर पड़ गया, आपके उस सबकॉन्शियस में, और आपने निद्रा में सोने चले गए, अभी वो पूरा का पूरा प्रपंच सामने आपके आ जाएगा स्वप्न अवस्था में। तो ये स्वप्न जो है, स्वप्न की स्टेट जो है, दिस इज द वर्ल्ड विच यू हैव क्रिएटेड, दिस इज द वर्ल्ड we are living in this world, but actually we are not living in this world which gives you air to breathe and everything. You are not living, you are living in your own world, you have your own world, me and mine. और वो me and mine में वो संस्कारों का गेम है जो स्वप्न अवस्था में चलता है। वो जो जगत है वही आपका जगत है, wherein you
वो अपना चलता रहता है। तो उस सुषुप्ति स्टेट में क्या होता है, उस डीप स्लीप में क्या होता है जिसकी पतंजलि बात कर रहे हैं, वो यह है कि आप डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एज वेल एज द इनर वर्ल्ड, द वर्ल्ड विच यू हैव क्रिएटेड, यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड। वहां पर अभाव है, अब्सेंस है, कोई कंटेंट नहीं है। उस अब्सेंस में उस अब्सेंस में ये चित्त जो है उसको आधार बना लेता है, सपोर्ट लेता है। और इसीलिए जब आप उठते हैं तो आप कहते हैं वो टुडे आई स्लेप्ट वेल। ये कौन था वो विटनेस करने वाला? तो महर्षि पतंजलि। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब कभी भी सोने के लिए आप जाते हैं और जाते उस समय आपने क्या करना चाहिए, कोई अच्छा शुभ मंत्र लेकर के या शुभ होली थॉट लेकर के सोना चाहिए। और वो सोएंगे तो रात भर वो होता रहेगा, मंत्र जागृत हो जाएगा। तो इसलिए वो कहा जाता है। तो उस समय भी आपका चित्त वो काम कर रहा होता है। और उसमें इसका और एक अर्थ निकलता है कि योर एग्जिस्टेंस डज नॉट बेस्ड ऑन द आउटर वर्ल्ड एज वेल एज द वर्ल्ड विच यू हैव क्रिएटेड, यू आर ऑल प्रिवेडिंग। इस अवस्था में ये भी एक समझ में आता है। और स्मृति जो है ये ऑलवेज ऑफ द पास्ट। तो पास्ट स्मृति, इधर वी आर ब्रूडिंग अबाउट द पास्ट और वी आर इमेजिनिंग अबाउट द फ्यूचर, बट वी डू नॉट लिव इन द प्रेजेंट। तो ये स्मृति भी दो प्रकार से, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इसलिए सब जगह एनर्जी एक है, पॉजिटिव भी है एनर्जी और नेगेटिव भी है। निर्भर करता है, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका थॉट एनर्जी कैरी करता है। अगर आपका थॉट पॉजिटिव है तो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो यू विल बी कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ द नेगेटिव थॉट। तो इस तरह ये जानना चाहिए। तो ये हमारे मोड ऑफ, इसमें छठा व्यवहार कोई भी नहीं है। अब पर्पस क्या है कि टुडे ये जो भाई एक रिक्वेस्ट है, ये अच्छी तरह हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे भाई अगर इसको नहीं हटाया। अगर आपने इसको हटा दीजिए प्लीज, जो कोई भी ये कर रहा है। और नहीं तो ये वेबिनार छोड़ करके आपने चले जाना चाहिए, आपको ये शोभा नहीं देता मेरे भाई जो भी इसके ऊपर कर रहे हैं। देखिए इसको बहुत सुंदर ढंग से हमारे जो मेंटल फंक्शंस हैं आज जो चल रहे हैं और उनको डाइवर्ट करने की बात है। महर्षि व्यास ने बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है चित्त नदी, उसको रिवर के साथ जोड़ा है। उभय तो वाहिनी, ये दो दिशाओं में बहती है। देखिए आपको दो दिशाओं में, ये क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रीवियस संस्कारास इट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन ओनली। द पर्पस ऑफ साधना इज, ये जो प्रैक्टिस जो हमने कहा था योग साइकोलॉजी एंड इट्स प्रैक्टिस और इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है इसका कि इसको, ये देखिए मैंने अभी ये बिंदु बिंदु आपको दिखाई पड़ेंगे, इसको डाइवर्ट करना है इस दिशा में, दूसरी दिशा में। ये नदी इस तरफ बह रही है, ऑटोमेटिकली बह रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे संस्कार वासना, बचपन से हमें कोई सिखाता नहीं सेंसरी प्लेजर्स के बारे में। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ऑटोमेटिकली सब कुछ सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे का सारा अनुभव हमारे पास है, वो कर्माशय में पड़ा हुआ है। अब ये नदी इस तरफ नेचुरल बह रही है। पर्पस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, विनियोग क्या करना है कि इसको दूसरी दिशा में लगाना है, अक्लिष्ट साइड में लाना। और दूसरा मैंने यहाँ लिखा है कि लो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। यहाँ पर जब तक वो मैंने चित्त के ऊपर, मैंने शीशे के मिरर के ऊपर जो मैंने उदाहरण दिया था आपको कि वो पोल्यूटेड विद द डस्ट पार्टिकल, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट योर इमेज at this point of time. So long this river is flowing toward this direction, it is a negative direction which will lead you to endless pain and misery. अगर इस दिशा से उसे हटाना है तो हटाने के लिए हमारे पास उपाय हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। परंतु पर्पस को जानना है कि दिस इज द पर्पस। और जब तक ये इस दिशा में बह रही है तो लाइट भी डिम है, उस पुरुष की लाइट भी डिम है, यानी वो सरफेस जो है पोल्यूटेड है डस्ट पार्टिकल से। उसे क्लीन करना और क्लीन करके दूसरी दिशा में बहाना, यही पर्पस है इस पूरी के पूरे साधना का। यानी हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शंस को जो आज इस दिशा में बह रहे हैं उसको दूसरी तरफ लगाना। जहां ऐसा अगर करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली, जैसे पतंजलि ने कहा कि यहाँ अशुद्धियों का क्षय होता जाएगा और उधर ज्ञान का प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। ये डिम लाइट कम होती चली जाएगी और ये ज्ञान का प्रकाश इधर बढ़ता चला जाएगा इस दिशा में, which will lead you towards understanding who you are. Who am I? This is the question. So how to do this? These are the general means given by Patanjali. Sorry. These are the general means. ये अभ्यास और वैराग्य, देखिए ये सब जगह
जब अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रम तस्य हम निग्रह मन्ने वायुरिव सदुष्करम, वो वायु से ज्यादा तेज भागता है ये मन, इसके फंक्शन को कैसा कंट्रोल करना, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाट इज आस्किंग अर्जुना to Krishna, and Lord Krishna accepts. Asensham Mahabaho, whatever you said, it is correct. It is very difficult to control the mind, but अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य निगृहीते, अभ्यास बार बार, छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को जानना चाहिए। अभ्यास, जो चीज आपको प्राप्त करनी है उस दिशा में अभ्यास करना है, और जो चीजें उसमें बाधा पहुंचाने वाली हैं उनके प्रति थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेडनेस करनी है। डे टू डे लाइफ में इसको बहुत अच्छी तरह, अभी मैं अपना उदाहरण दूं कि मुझे मैं सपोज उदाहरण नहीं बना रहा हूं कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर शर्मा नाउ यू आर ग्रोइंग ओल्ड सो यू हैव टू अवॉइड दिस। ओके, तो मुझे तो आदत थी वो ग्रीन चिल्ली खाने की, और डॉक्टर कह रहे हैं नहीं खाना चाहिए, तो ग्रीन चिल्ली के प्रति मेरा डिसइंटरेस्टेड आना चाहिए, और उबली हुई चीजें खाने के लिए मेरा कोशिश होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। बहुत ग्राउंड लेवल का उदाहरण है। ऐसे ही हर जगह ये दोनों जो है, ये दो पक्षी के पंखों की तरह है, दो पंख हैं ये पक्षी के, यानी साधक के दो पंख हैं ये। अगर इन दो पंखों का सहारा नहीं लिया तो पक्षी उड़ नहीं सकता। साधक अपनी जिस दिशा में उसको अपने इन फंक्शंस को ले जाना है वो हो नहीं सकता, इसलिए इनका दोनों का सहारा बहुत अच्छी तरह महर्षि पतंजलि ने डिफाइन किया है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, और वो होना कैसा चाहिए, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, दीर्घ काल लंबे समय तक और निरंतर होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, और सत्कार पूर्वक होना चाहिए, तभी वो दृढ़ भूमि होता है अभ्यास। और दूसरा, धीरे धीरे आप वो देखे हुए विषय और सुने हुए विषयों के प्रति धीरे धीरे जो आपको प्रलोभन देने वाले विषय थे उनके प्रति आपका धीरे धीरे डिस्पैशन, आपका डिसइंटरेस्टेडनेस होने चला जाता है। और इसको करने के लिए बहुत सुंदर, देखिए ये भी साइकोलॉजिकल, ये क्रिया योग का पक्ष जो है ये साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। महर्षि पतंजलि ने सुबह सुबह, आज आपने सुना विवेक महेश्वरी जी बहुत सुंदर ढंग से ज्ञान भक्ति कर्म की बात करते करते हम तीनों को बहुत ऊंचा उठा दिया था उन्होंने, बहुत ही अतिशोक्तिपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया था उन्होंने। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही बात बताऊंगा कि महर्षि पतंजलि क्या अभ्यास करना किस चीज का है और वैराग्य किन चीजों से करना है। तो यहाँ देखिए, ये पहला साधना पाद में पहला सूत्र जो है क्रिया योग का, वो ज्ञान, इच्छा और क्रिया। आज आपके पास ज्ञान है, जहां जरा सा नोट कीजिए, टाइम बहुत कम है, मैं बीच में छोड़ दूंगा अभी, क्योंकि मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल चुका हूं। ज्ञान, इच्छा और क्रिया। आज आपके पास ज्ञान है। क्या ज्ञान है? ये मैं शर्मा हूं, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, मैंने सेपरेट बना लिया, ये ज्ञान है आज मेरे पास। और जैसा मेरा ज्ञान है तदनुसार मेरी इच्छा जागृत होती है, और जैसी इच्छा जागृत होती है वैसा एक्शन होता है। ये आज जो हो रहा है वो सब क्लिष्ट व्यापार की तरफ, आपने जो पीछे देखा ये सब इस तरफ हो रहा है। ये ज्ञान उसी प्रकार का है, इसलिए इस दिशा में हो रहा है। पर्पस क्या है? इसे रिफाइन करना है। रिफाइन करके इसको कैसा रिफाइन होगा? ये रिफाइन करने के लिए हमें तप करना पड़ेगा। तप क्या करना है? तप क्या होता है? तपो द्वंद्व सहनम। जब आप थोड़ा सा अपोजिट जाते हैं, अगर पानी के नहर में, एक कनाल में अगर आपने पानी भरा हुआ है, अगर आपने उस कनाल में जंप लगाया तो पानी ऑटोमेटिकली आपको उस दिशा में ले जाता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर वापस आना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू गो अगेंस्ट द करंट जाना पड़ता है। तो यहाँ वो अगेंस्ट द करंट जाना। यहाँ पर मैंने जो कहा कि यहाँ पर तो फ्लो नेचुरल है, क्योंकि हम लोगों ने इंद्रियों के सुखों के बारे में सब जाना, ऑटोमेटिकली उस दिशा में बह रहा है। इसको दूसरी तरफ बहाना, ये अगेंस्ट द करंट जाना है। इस करंट जाने के लिए हमारे पास ये उपाय है। पहले, सबसे पहले उस ज्ञान को स्वाध्याय के माध्यम से उस ज्ञान को रिफाइन करना, ईश्वर प्रधान के माध्यम से उस इच्छा को रिफाइन करना, और तप के माध्यम से, तप एक्शन है, वो एक्शन करना। ये तप क्या है? अब जरा सा शॉर्टकट में, तप क्या है? द्वंद्व को सहन करना। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको अनइजीनेस आएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अगेंस्ट द करंट जाना पड़ेगा, उसे सहन करना पड़ेगा। अगर वो सहन करने की शक्ति नहीं बढ़ाई, जैसे वेदांत में वो तितिक्षा शब्द का प्रयोग है,
वो तितिक्षा होनी चाहिए, पेशेंस रहनी चाहिए आपको, और सहन करने की क्षमता आनी चाहिए आपके अंदर, तभी वो हो सकता है। तो इसको सहन कर, तपा प्राणायाम परमम तपा, प्राणायाम करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली सहन करने की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि आपका मन और आपका प्राण ये दोनों आपस में अविच्छेद्य संबंध है, दे आर interrelated, interconnected. If you stop the pran, you will be able to stop the mind. So mind के फंक्शन को रोकने के लिए या उसको रीडाइवर्ट करने के लिए ये बेस्ट उपाय है प्राणायाम, ऐसा शॉर्टकट में बताया। और जो तपस्वी नहीं हो सकता, जो ऐसा सहन करने की क्षमता नहीं रख सकता, वो योग के क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकता। स्पष्ट शब्दों में व्यास जी ने कहा, आप देख सकते हैं। स्वाध्याय है, 3 प्रकार से इसको जाना जा सकता है। पठनम, पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए। पठनम क्या पढ़ना है? होली किताब पढ़ना, होली मंत्र पढ़ना, होली चीजें पढ़ना। इसको करते करते क्या होगा, आपको पठनम के बाद अध्ययन की बात आती है, फिर अध्ययन होता है, अध्ययन के बाद फिर मनन चिंतन होता है, और मनन चिंतन के बाद भी निधि ध्यासन होता है। जैसे श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, ये 3 हमारे दर्शन शास्त्र में यही तरीका है। तो कैसे स्वाध्याय करें डे टू डे, क्योंकि ये क्रिया योग है, कुछ करने की बात है, तो कैसे करें हम डे टू डे लाइफ में। आप जब भी सुबह उठते हैं, आप एक फैसला कीजिए कि आज मैं दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा। आप एक फैसला किए, एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन कीजिए, आज डिसाइड कीजिए कि मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा। दिन में वो सिचुएशन आएगी जब झूठ बोलने वाली बात उठेगी, उस समय अगर आपने उसको रोक लिया, जान लिया कि मैंने, इनर गाइड आपका कहेगा कि देखो मॉर्निंग में आपने ये किया है और आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आपने झूठ बोल दिया तो क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाएगी। अगर आपने झूठ नहीं बोला तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। शाम को सोते समय थोड़ी देर के लिए फिर से बैठना, बैठ करके थोड़ा सा देखना कि कहाँ कहाँ आपने गलती किया, कहाँ कहाँ नहीं किया। तो जो कंड्यूसिव था उसे रखना, जो नॉन कंड्यूसिव था उसे फिर छोड़ देना। मॉर्निंग में दूसरे दिन दूसरा कुछ विचार करना। दिस इज हाउ स्लोली स्लोली यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट, अप्लाई दिस इन योर डे टू डे लाइफ एंड यू। और सच बोलते बोलते क्या होगा, पतंजलि ने कह दिया है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रय, तुम जब सत्य बोलते जाएंगे ऑटोमेटिकली भाग सिद्धि, जो कहोगे वो हो जाने वाला है। तो ये तरीका है स्वाध्याय करने का। और स्वाध्याय क्या, पवित्र मंत्रों का अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान क्या है, कोई भी आपके एक्शन, हार्ट की बीट आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, खाना आप अपनी मर्जी से पचा नहीं सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी से होता नहीं। जब कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं होता तो अपने आप को डूअर क्यों मानते हैं, कर्ता क्यों मानते हैं? भगवत गीता में भी कहा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। वो अहंकार विमूढ़ आत्मा होता है, वो विमूढ़, विमूढ़ बोले मूढ़, तमोगुण से प्रभावित है, इसलिए वो कर्ता मानता है। तमोगुण कब होता है, जब मोह होता है। अर्जुन को जब मोह हुआ कि ये मैं हूं और ये सब मेरे हैं, तभी वो मोहग्रस्त हुआ था। इस मोहग्रस्त के कारण ही वो मूढ़ हुआ, तमोगुण से आच्छादित हो गया था, यही है वो। तो इसलिए आपने ना हम करता हरि ही करता, मैं करता नहीं हूं, जो भी हो रहा है ये उसकी इच्छा से हो रहा है, और मैं कैसे उसमें अच्छा से अच्छा, ये इस शरीर के अंदर भी अब वो हरि ही बैठे हुए हैं, वो पुरुष तत्व जो है वो शरीर के अंदर है, जिसके कारण ये शरीर काम कर रहा है। जैसा मैंने शुरू में दिखाया था, यदि वो पुरुष तत्व अभी चला जाए तो ये डेड बॉडी हो जाएगी। इसलिए ये अंदर बना रहे, इसलिए इस बॉडी को भी अब्यूज ना करें, और इसमें जो भी सोच विचार हमारे, ये जो मेंटल फंक्शंस है हमारे, उसमें भी हम पॉजिटिविटी जितनी, क्योंकि आपका थॉट इतना पावरफुल है, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सारे उपाय आगे हमें बताए गए हैं, परंतु इन उपायों से सभी लोग परिचित हैं। मैं एक जस्ट आपको इस फंक्शन के बारे में ये बताना चाहता था। ये जो चर्चा आपके साथ हुई, मैं यहीं पे रुकता हूं, क्योंकि मुझे जो समय दिया गया है वो इतना काफी है। अगर प्रश्न कुछ हो तो बहुत ही अच्छा है, तो प्रश्नों के उत्तर में थोड़ा और एलेबोरेट कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये प्रेजेंटेशन को धन्यवाद सर।